Okay, so let's have a quick recap of the term capital. So capital, as it is written here, capital is equals to asset minus liability. This is the accounting equation that we are following. So this accounting equation says that the balance sheet statement that we prepare, on one side we showcase all our assets, and on the other side we showcase our liabilities. And capital is also one of the liabilities that we have, and it is called our internal liability. Now, why is it called our internal liability? We have already discussed it, but let me tell this to you again, that since business and businessman are considered as two separate entities, it means business is a legal entity which has been created by following the legal formalities, and businessman is having a natural entity, a God-made entity. So basically, of the difference of the two identities that they have, and because of the following of separate legal entity principle, it is said that whatever fund that businessman is providing to the business should be taken as in form of loan. लोन, मगर हम इस लोन को एज एन जो उसका नाम लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो लोन नहीं लिखते, उसका नाम होता है कैपिटल. So whatever amount that businessman is investing in the business is called capital, and whatever withdrawals that he'll be making out of the business for his personal use is called drawings, right? So that drawings can be again in form of cash or in form of any assets. Similarly, capital can also be contributed in form of cash or in form of any other asset, right? But whatever capital that has been raised is all used for the purpose of operations, running the operations of the business. That is very important to be taken care of. That anybody who is starting the business is starting it for the purpose of running it. उसको चलाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए पैसा लगाया जाता है. तो जो भी आप पैसा लगा रहे हैं उसमें हमेशा बिजनेसमैन ये ध्यान रखता है और कोशिश करता है कि उसको प्रॉफिट जनरेट हो, राइट? सो प्रॉफिट इज बेसिकली द रिटर्न टू द बिजनेसमैन. If profit is not getting generated, so it is going to result into loss, which is to be deducted from the amount of capital shown in balance sheet. Okay, this was capital, which we have already covered. The next point after this is drawings, which we are going to start today. So drawings का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ड्राइंग्स भी कैपिटल से ही रिलेटेड टर्म है. और ड्राइंग्स का मतलब होता है कोई भी कैश, यानी कि कोई भी अमाउंट या कोई भी एसेट जिसको कि बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए अगर विड्रॉ किया है, तो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स. सो ड्राइंग्स कैन बी इन नेचर ऑफ कैश, इट कैन बी इन नेचर ऑफ एनी एसेट्स, बट the resultant output for drawings would be, जब भी withdrawals होंगे, so it is going to reduce the amount of capital. So it is shown like this: capital minus drawings, right? This is how we are going to show it in the balance sheet. Next concept is liability that we are going to deal today. So liability, जैसे हम पहले भी जान चुके हैं और हमने इसके बारे में थोड़ी एक्सरसाइजेस भी की हैं. तो लाइबिलिटी का मतलब अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन से समझाऊं तो क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन थी हमारी ये: assets is equals to liability plus capital. मैथ्स को यूज कीजिए, साइन को रिवर्स कीजिए. liability is equals to asset minus capital. Okay, so when we have this asset minus capital concept, so we can see कि आपके पास यहाँ पे ये वाला इक्वेशन बन के आता है, अकाउंटिंग इक्वेशन जिसे हम कहते हैं. तो अब लाइबिलिटी क्या होती है हमारे पास? लाइबिलिटी मींस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. नाउ एक्सटर्नल लाइबिलिटी मींस द अमाउंट व्हिच इज ड्यू टू अदर्स, राइट? तो जो हमको दूसरों की तरफ ऑब्लिगेशन है, जो हमें पे करना है, दैट इज कॉल्ड आवर लाइबिलिटी. एंड हियर इट मींस द एक्सटर्नल लाइबिलिटी नॉट इंक्लूडिंग द कैपिटल अमाउंट, राइट? तो अभी यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन दी गई है कि लाइबिलिटी को कैसे क्लासिफाई किया जाता है. तो लाइबिलिटी अगर मैं सम टोटल में बात करूं तो लाइबिलिटी इज बेसिकली एन ऑब्लिगेशन टू रीपे, राइट? ओके, सो what are the various types of liabilities that we have here? We have internal liability. The first one is internal liability. Internal liability मैंने बताया था कि कैपिटल आपकी internal liability होती है. It means something which we have borrowed from somebody, but we are not supposed to pay it to the outsider. तो वो ऐसी कौन सी इंटरनल पार्टी है जिससे हमको पैसा मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जिसको हमें रीपे तो करना है, मगर वो आउटसाइडर नहीं है. वो सिर्फ एक ही पार्टी होती है, दैट इज कॉल्ड आवर ओनर, राइट? तो जिसके पास भी ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप है,
सिर्फ वो ही हमारी इंटरनल पार्टी में आता है, और वो उसकी तरफ उसके थ्रू लगाया हुआ सारा पैसा हमारी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, जो कि जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ कैपिटल, राइट। दूसरी लायबिलिटी है एक्सटर्नल लायबिलिटी, मींस ऑल द अमाउंट दैट वी आर सपोज टू पे टू द आउटसाइडर्स, राइट। सो आउटसाइडर मींस एनीबडी who is giving any amount or any the business organization which we are supposed to pay either in the short term or in the long term, but we are supposed to pay to the outsider, that is to the third party. तो ये मेरी कहलाती है external liability. Example ले लेते हैं, like loan from bank is an external liability, right? Then we have creditors, right? Then we have bank overdraft. किसी भी चीज को जिसको हमने बोरो किया है, चाहे फिर वो रॉ मटेरियल बोरो किया या मैंने पैसे बोरो किए, which is supposed to be repaid to the party outside to the business, is called external liability. I hope this is clear to all. Anybody having any doubt, please write it down in the chat box. Okay. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं या फिर फिक्स्ड लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, राइट. जनरली लॉन्ग टर्म से ज्यादा रेफर किया जाता है इसे नॉन करंट की जगह पर. सो नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटी व्हिच वी आर wherein we are distinguishing the liability based on the period for which it has been taken. तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसको मुझे रीपेमेंट करनी है, जिसकी in the period which is less than 1 year. So repayment within less than 1 year, 1 financial year, तो वो होगी मेरी करंट लाइबिलिटी, राइट. मतलब हर वो लाइबिलिटी जो कि मुझे 1 साल से कम समय में रीपे कर देनी है, उसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज? सो दीज कैन बी सम ऑफ द एग्जांपल्स आर बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक से अगर आप ओवरड्रॉ कर रहे हैं तो वो आप ऑब्वियस है कि 1 साल से कम समय में लौटाएंगे. देन वी हैव creditors, then we have outstanding expenses, then we have income received in advance. इन सब का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, अगर बैंक मुझे फैसिलिटेट करता है कि मैं उससे ज्यादा जो मेरा बैलेंस है अवेलेबल उससे ज्यादा अमाउंट अगर विड्रॉ करूं और बैंक उस चीज को सैंक्शन कर रहा है, तो जितना भी एडिशनल अमाउंट आपको निकालने के लिए सैंक्शन किया गया है वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट. और बैंक इसके ऊपर आपसे चार्ज करता है इंटरेस्ट, राइट. सो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके. सेकेंड वन इज क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे मैंने या तो रॉ मटेरियल या फिर पैसे, राइट, आइदर ऑफ द टू, अगर या फिर बोथ ऑफ देम मैंने उससे बोरो किया है, और बोरो किया है मैंने एक साल से कम के समय के लिए, राइट. सो दैट इज कॉल्ड माय क्रेडिटर. नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. इसको मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ाते वक्त आपको बताया था that outstanding expense means expense which we have incurred but we have not paid it till date. मतलब ड्यू डेट तक जिस एक्सपेंस को नहीं पे किया गया है वो मेरा कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. और दूसरा होता है मेरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब आपने इनकम ऑलरेडी रिसीव कर ली है मगर आपने उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की है. So now it is your liability to provide the services for that income which you have received in advance. तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाएंगी आपकी करंट लाइबिलिटी. मतलब करंट लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हर वो लाइबिलिटी जिसको आपको 1 साल से कम के समय में रीपे करना है. Okay, now I've received this doubt, so let me just solve it. Bank overdraft and loan is the same thing. Okay. Bank overdraft and loan is not the same thing. I'll tell you how. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपके लिए ऐसे, ओके, मैं क्या आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ. आपने बैंक से ओवरड्रॉ किया, राइट. तो वो ओवरड्राफ्ट जो आपने लिया है, जितना भी एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है जिसको बैंक ने आपको सैंक्शन करके दिया है, उसको आप कितने समय में रीपे करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में?
बट बेसिकली आप उसको साल के विद इन रीपे कर देंगे। तो अगर आप इसे एज अ लोन समझना चाहते हैं तो हम इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन, राइट। शॉर्ट टर्म लोन जिसका अमाउंट भी बहुत कम है और पीरियड भी बहुत कम है। जैसे आप मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे और बैंक ने आपको कहा कि आप इसके ऊपर 50% एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं, तो 10 लाख का 50% कितना हुआ, 5 लाख। यानी कि 15 लाख तक का कोई भी चेक अगर आप सैंक्शन करेंगे तो बैंक उसको ऑनर कर लेगा, राइट। तो ये जो 5 लाख का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है विड्रॉ करने की, ये आपको मिल रही है छोटे समय के लिए, राइट। छोटे समय मतलब पीरियड जिसका 1 साल से कम है और आपको इसको वापस करना है। तो ये जो 5 लाख का आपको बेनिफिट मिला, ये आपको मिला पहली बात शॉर्ट टर्म। दूसरा जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका हाई होता है, राइट। मतलब इसके ऊपर बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लगता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के ऊपर। इसीलिए जनरली लोग इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट एन इमरजेंसी यूज नहीं करते हैं। So we can take it as a loan which is provided by the bank for a smaller amount, right? And for a smaller period of time and for a shorter period of time. So that is called our bank overdraft facility. Loan की जब हम बात कर रहे हैं तो loan will come under the category of long term liability. लोन को हम यहाँ क्यों लिखते हैं? बिकॉज लोन का मतलब होता है कि कोई भी लोन जो आपने बोरो किया है बैंक से, उसको आप बोरो करेंगे जिसका पीरियड रहेगा नॉट लेस देन 3 years, 5 years, 10 years, राइट। तो आप लोन अगर ले रहे हैं तो लोन की जो टोटल पीरियड है वो हमेशा 1 साल से ज्यादा रहता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, राइट। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब हुआ that anybody who is taking the funds from the bank is supposed to take care of it and उसको वो repay करेगा after the period of 1 year. Okay, everyone. I'm so sorry for interrupting you all. My daughter has just come in and she wanted to say hi to everybody. Hi. Okay. So her name is Aradhya, and since we are taking these online classes, so there are times that she visits, she pays the visit to the classes. Okay, अब bye करते हैं. Bye. Okay. Let's continue with the class. Okay. Okay, everyone. So let's continue. We were talking about the types of liability. So the types of liability में हमने short term पढ़ लिया, हमने long term पढ़ लिया. Now short term means which is current and which has to be repaid within a time period of 1 year, and long term means which has to be repaid after the time period of 1 year. और जिसका भी समय जितना ज्यादा लंबा रहता है उसमें उतना ही ज्यादा आपको लंबे समय तक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, and you have to pay the principal amount also, right? तो जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का कॉम्पोजिशन होता है उसको कहा जाता है EMI, दैट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ, दैट यू आर पेइंग इंटरेस्ट, यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, और वो उसका एक सेगमेंट चलता है कि कितना अमाउंट का इंटरेस्ट रहेगा और कितना अमाउंट का प्रिंसिपल रहेगा, which we are supposed to repay every month over the loan that we have taken, right? And which can be which is more than 1 year, right? So this is our liability which we are dividing, which we are classifying based on the time period. So time period ke basis pe it is non-current, which is long-term liability, and current liability, which is short-term liability, ranging from 1 day to 1 year. Okay, I think this is clear to all. Now let's come on the next concept, which is assets. एसेट समझ लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे बुक से कि बुक में क्या लिखा है इन सब चीजों के बारे में। ओके, सो एसेट, मैंने आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी, ये सेम अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर हमारी यूज हो जाती है, दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दोनों का बैलेंस जब मिलेगा तो वो हमेशा एसेट के इक्वल होना चाहिए, राइट? दैट आल्सो शोज द अरिथमेटिक एक्यूरेसी। अरिथमेटिक एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो टोटलिंग है, जो कैलकुलेशंस है वो करेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज इसकी क्लासिफिकेशन। सो एसेट मतलब हम समझते हैं कि एसेट क्या होता है। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, दैट एसेट इज रिलेटेड टू एनी प्रॉपर्टी which a business is having in possession for the purpose of doing business, right? It may be for a short term, it may be for a long term, but basically अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं तो वो आपके लिए असेट्स कहलाते हैं, राइट? अब
assets के लिए types क्या है, assets की भी classification है. So the first classification that we have for asset is again based on the tenure for which we hold it. तो पहला है current जिसको पहला है नॉन करंट जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं. तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है वो कोई भी प्रॉपर्टी जिसको होल्ड किया जाता है या बिजनेस परचेज करती है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसको आप बेचने के पर्पस से नहीं खरीदते, राइट? दैट मींस व्हेनेवर दीज एसेट्स आर परचेज्ड, दे आर परचेज्ड so that the business can use it for a longer period of time, right? So that is our fixed assets. Now fixed assets को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, tangible और intangible. Tangible जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और intangible जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. तो जैसे tangible आपके assets हैं, so we can count it as, यहाँ रब करते हैं थोड़ा सा. Okay, so tangible assets के एग्जांपल में हम कर सकते हैं land and building. Then we have plant and machinery. We have furniture, right? So these are tangible ones. Now what is intangible? Intangible asset, which is an asset but it is not having any kind of physical existence. So what is it? So it is goodwill. It includes goodwill, patent, trademark, कॉपीराइट, राइट? ये जो चीजें हैं आपकी जब भी कहीं भी लिखी आती हैं तो इसका मतलब है आप समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं आपके intangible fixed assets की, right? So intangible fixed assets का मैंने आपको मतलब बताया, that something which has not got the physical existence. Goodwill is the reputation. एक एक करके समझ लेते हैं. I think land and building, plant and machinery, furniture समझने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. These are the fixed assets which the business is purchasing for the purpose of operating its business, doing its business operations, right? Current assets कौन से आपके intangible fixed assets कौन से होते हैं? Intangible fixed assets वो होते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. जैसे मैंने बात की गुडविल की, तो गुडविल का मतलब क्या हुआ? गुडविल मींस एनी रेप्यूटेशन, राइट? सो इफ द फर्म इज हैविंग द रेप्यूटेशन in the market, which is called also, which can also be considered about the credit worthiness of the business in the market, that is called goodwill, right? तो goodwill की वैल्यू हम उसके थ्रू अर्न किए हुए प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते होते हैं. नेक्स्ट है हमारा पेटेंट. पेटेंट होता है आपकी टेक्नोलॉजी के केस में, जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई टेक्नोलॉजी बनाती है और उसको पेटेंट करवा लेती है, मतलब उसको रजिस्टर करवा लेती है खुद के नाम पर, तो आप उस टेक्नोलॉजी के क्रिएटर, उसके ओनर हो जाते हैं. और अब जो भी उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा वो आपसे राइट्स लेगा उसको यूज करने के लिए, एंड अगेंस्ट दैट राइट दे विल बी पेइंग फीस, राइट? तो ये हुआ आपके लिए पेटेंट. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क आपने देखा होगा कई सारे आपके सिंबल्स होते हैं. जैसे आपका ट्रेडमार्क के लिए हम कह सकते हैं कि ओके, कोई बिजनेस है, उसने अपना कोई मार्क बनाया है थ्रू विच इट इज रिफ्लेक्टिंग कि ये इसकी ओरिजिनलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. जैसे हम अगर बात करें, लेट्स टेक सम एग्जांपल. जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड पे आपका हॉल मार्क होता है, BIS मार्क होता है, तो ये सब चीजें गोल्ड की प्योरिटी दिखाती है. सिमिलरली आपका ट्रेडमार्क का मतलब कुछ ऐसा हुआ कॉन्सेप्ट की एक ऐसा मार्क है, एक ऐसा सिंबल है जो दिखा रहा है उस बिजनेस को, राइट? यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये इस बिजनेस से रिलेटेड है. सो नोबडी एल्स कैन यूज द सेम ट्रेडमार्क, बिकॉज अगर आप यूज करते हैं तो ये आपका एक लीगल ऑफेंस माना जाता है, राइट? तो ये ट्रेडमार्क आपका एसेट हुआ. सिमिलरली कॉपीराइट. कॉपीराइट इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ द पब्लिश्ड मटेरियल दैट वी हैव. तो अगर जैसे किसी ने बुक लिखी है या कोई भी मटेरियल लिखा है, उसको वो कॉपीराइट करवा लेते हैं, so that anybody who is using that material has to mention the source or has to take the rights for copying that material. Otherwise copyright reserved का मतलब हो जाता है कि जिसका वो copyright है, जिसका वो लिखा हुआ original work है, it belongs to that person only and nobody else is supposed to use it without taking the permission and without making the payment of the fees, right? So these are your intangible fixed assets. So tangible, intangible का मतलब क्या हुआ? Something which has got a physical existence and the intangible ones which has not got the physical existence. So
So these both are to be covered under the element of fixed assets, right? Next है हमारे पास current assets. करंट एसेट्स का मतलब जैसे करंट लायबिलिटी होते हैं वैसे ही करंट एसेट्स होते हैं. तो करंट एसेट्स का मतलब हुआ कि वो सारे एसेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से कम की होती है, मतलब उसको 1 साल के अंदर आप बेच देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, राइट. तो ये सारे आपके करंट एसेट्स कहलाते हैं. एग्जांपल से समझते हैं. जैसे करंट एसेट होगा आपके पास okay, let me give you the example here. Current asset is like cash which is in hand, bank balance जो आप बैंक में होल्ड कर रहे हैं. देन वी हैव डेटर यानी कि वो कस्टमर जिसको आपने क्रेडिट में बेचा है जो आपको पैसे देगा, राइट. देन वी हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंस जो आपने ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया, या फिर अक्रूड इनकम, राइट. सो अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? वो इनकम जो आपने अर्न कर ली है मगर आपने रिसीव नहीं की है. तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे करंट एसेट्स के. तो अब ये करंट एसेट्स वो एसेट्स हुए जो आपको होल्ड करने हैं मगर कितने समय के लिए? फॉर अ पीरियड विच इज लेस देन 1 ईयर. तो इसका जो करंट फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनका टेन्योर जनरली 1 साल से ज्यादा ही रहता है, और करंट एसेट का टेन्योर हमेशा इट इज less than 1 year. That means 1 year के अंदर आपके पास इसका पैसा आ जाएगा, right? So this is your current asset. Now next one which is fictitious asset. Fictitious asset थोड़ा सा complex statement, complex concept है. मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं कितना समझ में आएगा अभी. Okay. Fictitious assets are those assets which are basically the expenditures which we have made but we are not able to cover it within a period of 1 year. तो क्योंकि हम उसे रिकवर नहीं कर पाए हैं इसीलिए वो सारे एक्सपेंडिचर्स हम काउंट करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स में. एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे बिजनेस आपने शुरू किया, तो बिजनेस को शुरू करने के टाइम पर आपने कुछ खर्चा किया होगा लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए. उसको उस सारे एक्सपेंसेस को जो बिजनेस के शुरू होने से पहले किए गए हैं उनको कहा जाता है आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट. Preliminary expenses का मतलब होता है for all those expenses that you have incurred by the owner at the time when the business has not even started, right? तो ये आपके कहलाएंगे preliminary expenses. अब preliminary expenses जो आपने incur किए, मान लेते हैं आपने incur किए 5 लाख किसी business को existence में लाने के लिए. अब business ने चलना शुरू किया, operation शुरू हुए, उसने profit earn करना शुरू किया. कितना समय लगता है आपको लगेगा कि 5 लाख रिकवर हो जाएगा? हो सकता है कि 5 लाख एक ही साल में रिकवर हो जाए, हो सकता है आने वाले 5 साल लग जाए उसको रिकवर होने में. तो अगर 5 सालों में रिकवर हो रहा है तो मान के चलते हैं कि हर साल 1-1 लाख रुपए रिकवर हो रहा है. तो जितना रिकवर होता जाएगा एक्सपेंस उसको हम करेंगे चार्ज अंडर द हेड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी कि जो रिकवर हो गया उसको मैंने एज एन एक्सपेंस मान के माइनस कर दिया और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. और जितना रिकवर नहीं हुआ है एक्सपेंस दैट इज 4 लाख रुपीज उसको आप शो करेंगे इन द एसेट कैटेगरी इन बैलेंस शीट एज अ फिक्टिशियस एसेट अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, राइट. इसको फिक्टिशियस एसेट्स को बेसिकली हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स भी कहते हैं. यानी कि ये वो एसेट्स है जो बेसिकली आपके फिक्स्ड और करंट के नेचर के नहीं है, राइट. मगर ये वो खर्चे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने किया था किसी समय पे और उसको रिकवर करने में लगेगा आपको आने वाला समय, मतलब उसको समय जो आपको लगने वाला है रिकवर करने में वो 1 साल से ज्यादा होता है. एक और एग्जांपल समझाती हूँ. ओके, मान लेते हैं हमारे पास हमने शेयर्स के थ्रू पैसा रेज किया है और हमने शेयर्स को बेचने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि 90% ऑफ शेयर्स जब तक नहीं बिकते हैं उस इशू को सक्सेस नहीं कहा जाता है, राइट. तो आपने शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करने के लिए अपने शेयर्स को मार्केट में निकाला, इशू किया. अब आपको ये गारंटी नहीं है कि लोग परचेज करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आपके शेयर्स को या नहीं. तो आपने क्या किया? आपने कुछ लोगों को हायर किया एज अ गारंटर. नाउ व्हाट हु ऑल आर द गारंटर्स? दे आर कॉल्ड अंडरराइटर्स. सो अंडरराइटर्स आपने हायर किए टू जस्ट इंश्योर that if in case the public is not purchasing the share, these are the people who are going to buy the shares and they are going to ensure that
and they are going to ensure that the issue is a success, right? तो जो भी शॉर्टफॉल रहेगा पब्लिक के सब्सक्राइब करने में, जो 90% होने में रहेगा, वो सब शेयर्स आपके अंडरराइटर्स खरीद लेंगे. तो अंडरराइटर्स कैन बी अज्यूम्ड एज अ गारंटर्स दैट दे विल इंश्योर दैट द इशू इज गोइंग टू बी अ सक्सेस. ओके, तो ये आपका रहा आपके अंडरराइटर. अब अंडरराइटर्स को बदले में क्या मिलेगा? जो आपके शेयर्स खरीद रहा है उसको आप वो चार्ज करते हैं एक फीस जिसको कहा जाता है अंडरराइटिंग कमीशन. तो वो अंडरराइटिंग कमीशन भी जो एक्सपेंस होता है वो फिक्टिशियस एसेट होता है, यानी कि जो आपने पे किया है अपने अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग कमीशन, वो आपका ऐसा एक्सपेंस है जिसको कवर करने में आपको कुछ साल लगेंगे. तो जितना समय आपको लगेगा, जब तक वो कवर नहीं हो जाता, वो दिखता रहेगा आपके एसेट के अंदर बैलेंस शीट में एज अ फिक्टिशियस एसेट, right? So these are the fictitious asset, and here we come to an end of the three major concepts that we were supposed to do today. Okay, अब ये तीन concepts हैं, मगर ये तीन बहुत ही major concepts हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इसे देखें, इस concepts को समझें, revise करें, right? और उसको बेहतर तरीके से समझ के लिखें, because ये जो आपका asset liability drawing capital का concept था, ये ऐसा major concept है कि इसी के ऊपर आपकी पूरी balance sheet बनती है, राइट? और इसी के को यूज करके हम बनाएंगे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमारी फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर होगा. इसीलिए बहुत आराम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए, रिवाइज कीजिए, सो दैट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, it is going to be very easy for you. Right, now let's go back and let me share the screen with you and let's read the concept. Right, okay everyone, so we have started with liability today, sorry, drawings today. कैपिटल हमने ऑलरेडी समझ लिया था, तो ड्राइंग से पढ़ना शुरू करते हैं. ड्राइंग्स मींस एनी कैश और द वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for personal use or the private payment made out of the business funds are called drawings. That means personal, private, household, ऐसा कहीं भी कुछ भी दिखेगा आपको लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि it is reflecting to drawings. Okay, next one is liability. It refers to the amount which the firm owes to outsider. Now outsider means we're talking about the third party, external party, right? Accepting the amount owed to proprietor, क्योंकि वो कहलाएगा हमारा capital. Wonderful. Okay, in the word of Finney and Miller, liability are debt. Liability को जो long term liability होती है, यहाँ पे underline कर लीजिएगा, उसको debt भी कहा जाता है, right? So liabilities are debt. इसको DEBT लिखा गया है, मगर इसको पढ़ते डेट है, डी साइलेंट है यहाँ पर, तो ध्यान से पढ़िएगा इसे. तो लाइबिलिटीज आर डेट, they are the amounts owed to creditor, मतलब the amount which we have an obligation to repay to the creditor. So this is expressed as liability is equals to asset minus capital, जो हमने already देख लिया. Thus, when a firm purchases goods on credit from A, the amount amounting to owing to A is a liability. Similarly, आपका अगर हम इसको उल्टा कर देते कि अगर A से गुड्स खरीदे हैं तो B क्या हुआ? B हुआ आपका डेटर. A के लिए B हुआ डेटर और B के लिए A क्या हुआ? उसका क्रेडिटर. Creditor is a liability. Likewise, when a bank account is overdrawn, the amount owing to the bank is called bank overdraft. मतलब जितना भी over and above आपने withdraw किया है बैंक से, that is called your overdraft. They are the amount owed to उसके आगे likewise the bills payable, creditors, unpaid wages यहाँ पे लिखा है, it is referring to outstanding wages only, are also are the examples of liability. यहाँ पे एक concept लिखा है bills payable. Bills payable मैं बता देती हूँ क्या होता है आपको. Bills payable basically एक तरीके का negotiable instrument होता है जिसको कि issue किया जाता है as a source document. मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे मैंने आपको कहा कि कैश ट्रांजैक्शन हुआ तो आपको एक सोर्स डॉक्यूमेंट मिला जिसको हम कहते हैं कैश मेमो, राइट? मगर अगर वही ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता तो आपको क्या मिलता? तब आपको मिलता एक बिल, राइट? अब बिल क्या होता है? बिल का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है बिटवीन दीज टू पार्टीज, wherein A is the seller, B is the buyer. Okay, so when the transaction is taking place, जहां A seller है तो A बिल लिख कर देगा B को कि अब B को इतना पेमेंट करना है A को, राइट? तो A क्या हुआ? A बना डेटर और A को जो बिल मिल रहा है वो
बी के लिए क्या होगा, जो बी को बिल मिलेगा वो बी के लिए कहलाएगा उसका बिल्स पेएबल। क्यों? क्योंकि बी को पेमेंट करनी है ए को उतने ही अमाउंट की जितने की उसने सामान खरीदा है। सिमिलरली जब हम ए की बात करेंगे तो ए ने सामान बेचा है तो वो इंटाइटल्ड है पैसा रिसीव करने के लिए, इसीलिए जो बिल उसने लिखा है वो ए के लिए कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल होता है हमारा करंट एसेट और बिल्स पेएबल उसका ठीक उल्टा होता है हमारा करंट लायबिलिटी, राइट? सो bills payable means it is an obligation to repay the amount to the creditors whenever we have made a credit purchase. तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको इशू किया जाता है उसे कहा जाता है बिल्स पेएबल। ओके, अब आगे आते हैं। सो लायबिलिटीज में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Internal means all the amount which a business entity has to pay to the proprietor owner. It's called internal. That is called capital and profit. Next is external liability. All the amounts which the business entity has to pay to the outsider is known as external liability. जैसे ऊपर जो जो लिखा है bills payable, creditor, आपका outstanding expenses, income received in advance, these are all your external liabilities. Okay. Next is based on the time. It is divided into two parts, current or long term. So long term पढ़ लेते हैं पहले. So these refers to those liabilities which fall due for payment for a relatively long period. Long period bracket में देखिए बहुत important है. Normally more than 1 year, right? Example is long term loans and debentures. Debentures आपको मैंने काफी पहले बताया था चैप्टर नंबर 1 के टाइम पर जब हमने डिवेंचर होल्डर की बात की थी कि डिवेंचर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि शेयर्स इशू करते हैं तो वी आर बेसिकली इशूइंग इट फॉर आवर ओनरशिप। मगर जब आप डिवेंचर के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो डिवेंचर वो सिक्योरिटी है जिसके थ्रू आप पैसा रेज कर रहे हैं जिसमें आपको टाइमली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब ये आपका एक तरह से लोन है जो आपने लिया है पब्लिक से by issuing them the certificate, by issuing them a security which is called debenture. Okay, डिबेंचर के अगेंस्ट आपको पे करना होता है इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और डिबेंचर की एक लाइफ होती है, मान लेते हैं जैसे 5 साल, तो 5 साल के बाद आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी। दिस इज ऑल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म, मतलब डिबेंचर भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट है हमारा करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज which are to be paid in near future. Near future मतलब कितना near है वो? It is less than an year, right? Examples are bank overdraft, bills payable, creditors, outstanding expenses and short term loans, right? तो ये जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो सारी हमारी current liabilities थी जो कि हमको repay करनी होती है within a time period of less than 1 year. Okay, so I hope this concept is very much clear to all. Now let's move on. We have got a time left which is less than 1 minute. Okay, so what I'm going to do right now is let's finish this meeting here only and let me reconnect with you for 5 or 10 more minutes so that we can complete this asset concept from the book. Okay, everyone, so let's connect again. I'm signing out. Please connect for another 10 minutes so that we can finish the concept of assets also. Thank you.